हेलो स्टूडेंट, टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर करा रहा सी, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आप पिछले लैक्चर के विच जो पढ़िया सीगा, एक टेबल बनाया सी आपां फॉर्मूलेस का, वो एक बार आपां दोबारा तो रिवाइज करते हैं। सब तो पहला तो जे कोई बोले सर्कल का एरिया तो होएगा पाई आर स्क्वायर, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ। ਜੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ 2r। 2r ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ 2r। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ 2r ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ। ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ 2 ਪਾਈ ਆਰ, ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ 2r ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਮਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ sin θ/2 cos θ/2। ਆ ਜਿਹੜਾ sin θ/2 cos θ/2 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ sin θ/2 cos θ/2। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਲੱਸ 2r। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 22/7 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Find the area of a sector of a circle with radius 4 cm and angle 30 degree. Also find the area of major sector. तो सानू बोला कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होएगा। तो सपोज है सेंटर है, सानू रेडियस दिता है 4 सेंटीमीटर और आ वाला एंगल भी दिता है सानू कितना दिता है, ये बोला है 30 डिग्रीज। तो सानू सब तो पहला बोलिया होया फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सैक्टर ते दूसरा बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सैक्टर। तो माइनर सैक्टर हुंदा सी आ वाला, मेजर सैक्टर हुंदा बाहर वाला। ठीक है, तो माइनर सैक्टर दा जेड़ा एरिया हुंदा ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ। तो उनके लिए फॉर्मूला की यूज़ करेंगे पर θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और इतने जी पाई की वैल्यू ने बोली है यूज़ करने वास्ते हुआ है 3.14। जस्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है। इतने लिखूँगा 30 डिग्री थीटा की जगह, थले 360 डिग्री, पाई की जगह आप लिखना है 3.14। रेडियस जोड़ा है साढ़े को कितना बोलिया गया 4 सेंटीमीटर। तो इतने लिखा 4 इंटू 4, 0 ना 0 गया, 3 1 जा 3 12 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो साढ़े को क्या गया 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को वैल्यू आई है एरिया ऑफ माइनर सैक्टर। केड़ा फॉर्मूला लगाया सी θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा सानू बोला है 30 डिग्री, तो मैं थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा
और रेडियस सानू बोलिया होया सी 4, तो रेडियस की जगह 4 और पाई की वैल्यू ने बोली सी यूज करने वास्ते 3.14। सॉल्व किया साडे कोल एरिया ऑफ माइनर सैक्टर आ गया है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाल ही क्वेश्चन विच बोलिया है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सैक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सैक्टर किद्दां कढदे हां असीं, मेजर सैक्टर का मतलब हो गया आ पेंडिंग वाला एरिया, वो कितना निकलेगा अगर मैं पूरे वाले सर्कल के एरिया विचों आ वाला एरिया माइनस करदा। इट मीनस आपां एरिया ऑफ सर्कल दे विचों माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सैक्टर, तो साडे कोल केड़ा एरिया बच जाऊगा मेजर सैक्टर का एरिया। एरिया सर्कल की होंदा है पाई आर स्क्वायर और हुणे ही आप माइनर सैक्टर का एरिया तो कट चुके हैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी बोली है यूज करने वास्ते 3.14, रेडियस जोड़ा है साडे कोल 4 है माइनस 4.19। इनू सब नू सॉल्व करके तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर आऊगा वो होगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके नाल तुसीं की कढिया है एरिया ऑफ मेजर सैक्टर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पूरे एरिया के सर्कल के पूरे सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ अगर ਆਹ वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ मेजर सैक्टर बचूगा। इट मीनस ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सैक्टर। माइनर सैक्टर का एरिया ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 4.19, तो ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 4.19। एरिया सर्कल की होंदा है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ने बोली है 3.14 यूज करने वास्ते और रेडियस हम दिता है 4 सेंटीमीटर। जस्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट की है, सॉल्व किया, साडे कोल आंसर आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन अ फिगर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री यूज पाई 22/7। तो सानू फिगर दी हुई है, सानू बोला है इस सैगमेंट का एरिया कड्डो। आप कल ही किया सीगा, जो एरिया ऑफ सैगमेंट करना है तो उहदे लई फॉर्मूला होंदा है एरिया ऑफ सैक्टर। देखो आ रही एरिया ऑफ सैक्टर, आ पूरे सैक्टर का एरिया कढ़ के अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे को केड़ा एरिया बचूगा ऊपर वाला। ठीक है, आप इहदे लई शॉर्टकट यूज किया सी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2। तो आप क्योंकि कल ही किया सी करना प्रूफ पूरा, तो आप एक तरीके शॉर्टकट लगा के भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं कितना करते हैं। तो सब तो पहला अपन करना की है एरिया ऑफ सैक्टर सैगमेंट ए वाई बी। अगर मैंने एरिया ऑफ सैगमेंट ए वाई बी चाहिए तो मैंने की करना पऊगा एरिया ऑफ सैक्टर कढ़ना पऊगा। केड़ा वाला सैक्टर एरिया ऑफ सैक्टर माइनस करना पऊगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो जे मैनू आ रीजन का एरिया चाहिए तो मैनू की करना पऊगा इस सैक्टर का एरिया कढ़ के उनके ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पऊगा, ताही मेरे को निकलूगा एरिया ऑफ द सैगमेंट ए वाई बी। तो सब तो पहला तो मैनू एरिया ऑफ सैक्टर पता होना चाहिए, फिर मैनू पता होना चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सब तो पहला आप कढ़ते हैं एरिया ऑफ सैक्टर। एनू इक्वेशन 1 लिख देने, आप इहदे विच वैल्यूज पुट करनियां ने। तो सब तो पहला आप कढ़ते हैं एरिया ऑफ सैक्टर। देखो केड़ा सैक्टर है आ वाला, इहदे लई फॉर्मूला की लगूगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की रिप्रेजेंट करता है रेडियस, पाई की वैल्यू ने बोली है 22/7, थीटा सन दिता है 120 डिग्री। सारी वैल्यूज आप सबस्टिट्यूट करते हैं, ये आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की जगह आप 22/7 लिखा और रेडियस बोलिया उन्हें 21, तो आप वैल्यू सारी पुट की। आ 0 ना 0 गया, 12 1s 12 3s, तो यह आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो 7 1s 7 3s, 3 नाल 3 भी गया, तो साढ़े को सिर्फ बचा 22 इंटू 21। इनू जो असी मल्टीप्लाई करांगे, देखो 22 नू अगर मैं 21 दे नाल मल्टीप्लाई करा तो यह आ जाएगा 2 2 4 ते 4, तो आएगा 462। ठीक है, तो सानू पता लग गया कि एरिया ऑफ सैक्टर कितना आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण जे मैनू करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो आप कल ही किया सी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना कड्डी दा हुंदा सीगा। जिहड़ा ट्राइंगल मैनू वड्डा करके जूम करके बना रहा, आ बने एक ट्राइंगल जो कि है
OAB अगर एंगल 120 डिग्री है तो आप इन्हू विचों दी कटदे सीगे तो एंगल कितना वजूगा 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री। बेस हुंदा सी है, हाइट हुंदी सी है, तो जिहड़ी बेस दी वैल्यू आंदी सीगी वो आंदी सी 2 sin θ/2 कल ही आपां कीता सीगा, और जिहड़ी हाइट दी वैल्यू आंदी सीगी वो आंदी सी अपने कोल cos θ/2। ठीक है, तो जे मैनू एरिया कढना है तो मैं की लगाना सी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना अपने कोल 2 sin θ/2 और हाइट कितनी है cos θ/2। ठीक है, 2 नाल 2 गया, ये आ गया sin θ/2 ते नाल आ गया cos θ/2। इत्थे थीटा कितना है 120 डिग्री, तो θ/2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब 60 डिग्रीज, तो ये आ गया sin 60 डिग्रीज। अच्छा, ये जी वैल्यू होंदी सी नाल आर भी आंदा सी कहंदे, ते अगेन अंदे नाल भी आर आंदा सीगा, तो इत्थे आपां आर पाना भुल गए। ठीक है, तो आर इंटू आर की हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आ गया sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री नाल आ जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई दे विच। ठीक है, क्योंकि आपां नूं पता है कल ही आपां कीता सी जे आपां बेस कटना है तो होगा 2, अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो जे तुसीं बेस कटना सीगा तो वैल्यू आंदी है 2 sin θ/2 इंटू आर, तो जिहड़ी हाइट आंदी सीगी वो आंदी सी r cos θ/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंदा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह मैं लिखा 2 sin θ/2 r, तो इहदे नाल भी लिखा cos θ/2 r, तो r इंटू आर की हो गया आर स्क्वायर, उन्होंने मैं बाहर लिखा 2 नाल 2 कटिया गया, तो साडे कोल की बच गया आर स्क्वायर sin θ/2 cos θ/2। तो आप सारी वैल्यूज इत्थे पुट करांगे तो हुण अपने कोल वैल्यू निकल आएगी। जे मैं देखा sin 60 डिग्री कितना होंदा है तो cos 60 डिग्री कितना होंदा, पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आप देख सकते हैं कि साडे कोल sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो तुसीं देखोगे sin 30 डिग्री 60 डिग्री होंदा है √3/2, तो अपने कोल cos 60 डिग्री आई गेस 1/2 होंदा है, एक बार आप चेक कर लेने। हाँ जी 1/2 ही होंदा है, तो वैल्यूज रख के आप इत्थे पुट कर देने हैं। देखो इत्थों दी मैं थोड़ा जिहा इस साइड ते कर रहा ताकि तुहानूं दिख जाए। सीगा अपने कोल आर स्क्वायर sin 60 डिग्री नाल सीगा cos 60 डिग्री। ठीक है, तो अपने कोल आर कितना सीगा 21, तो है गया 21 का स्क्वायर sin 60 डिग्री की जगह पर लिखा √3/2, cos 60 डिग्री की जगह पर लिखा 1/2। ये आपां नूं टेबल तो वैल्यूज पता ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो √3 की वैल्यू जी अप्रोक्सीमेट होंगी है वो वैसे तो 1.71 होंगी है, बट जो आप नहीं भी यूज़ करते तो भी इदा ही लिख सकते हो, तो इनू √3 लिख दिता। यह आ गया 21 × 21 डिवाइडेड बाय 4। इस चीज़ को तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 441/4 नाल आ गया √3। तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता लग गया है कि आया है 441/4 √3। तो देखो अपन बोलिया कि क्या सी एरिया ऑफ सैगमेंट कड्ढण वास्ते, तो असीं की करना सी एरिया ऑफ सैक्टर दे विचों एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना सी। एरिया ऑफ सैक्टर ਲਈ फॉर्मूला होंदा θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो आप सॉल्व किया साडे कोल कितनी वैल्यू आ गई 462 सेंटीमीटर²। फिर सानू एरिया ऑफ ट्रायंगल भी चाहिए सीगा, तो ट्रायंगल मैं जूम करके इत्थे बनाया। अगर ये 60 डिग्री सीगा तो असीं कहंदे आ सॉरी ये टोटल 120 डिग्री सी, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री और यह भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कल ही आपां कीता सी जिहड़ी बेस की वैल्यू आंदी सी वो आंदी सी कि 2r sin θ/2, तो हाइट की वैल्यू आंदी सी r cos θ/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के होंदा 1/2 बेस इंटू हाइट। सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ साडे कोल बचा सी r² sin θ/2 cos θ/2। थीटा 120 डिग्री सी, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मतलब 60 डिग्री, तो ये आ गया r² sin 60 डिग्री नाल आ गया cos 60 डिग्री। cos 60 होंदा है 1/2, sin 60 डिग्री होंदा है √3/2। टेबल दे विचों तुसीं देख सकते हो। तो r की वैल्यू सानू बोली सी 21, तो 21 का स्क्वायर सॉल्व करके साडे कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 441/4 √3। बट सानू क्वेश्चन विच बोलिया कि गया सानू तो करना है एरिया ऑफ सैगमेंट। तो एरिया ऑफ सैगमेंट का मतलब की होएगा एरिया ऑफ सैक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ सैक्टर कितना हुणे आपां कड्ढिया 462, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल असीं कड्ढिया 441/4 √3। तो यह तुहाडा की आ गया आंसर। सो मतलब जिहड़ा शेडिड रीजन है उनका एरिया कितना आ रहा है 462 माइनस 441/4 √3 सेंटीमीटर², क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर है तो इनका यूनिट की लिखा है सेंटीमीटर²।
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by a means of rope 5 meter as shown in figure. Find first part the area of that part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter used by equals to 3.14. तो क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਘਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 15 ਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਲਡ ਹੈ 15 ਬਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚੜ ਸਕਦਾ ਘੋੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੈਟ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਲਡ ਹੈ 15 ਬਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈ ਰੱਸੀ 5 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਆਹ B ਹੈ, ਆਹ C ਹੈ, ਆਹ D ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ E ਹੈ ਤੇ F ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ grazed by horse, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ। ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, DEF, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ D, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ E ਔਰ F, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ θ/360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਰੱਸੀ ਦੀ ਰੋਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤਰਫ। तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 5 ਹੈ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ 3.14 ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ठीक है। तो इनू जो थोड़ी जी कैलकुलेशन इनू सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/4 × 25 × 3.14, जो तुसी कैलकुलेट करोगे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 19.625, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्योंकि सानू जी रोप है वो मीटर से दी हुई है, तो सानू पता लग गया कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया है 19.625 मीटर स्क्वायर, कि घोड़ा जिहड़ा है इन्ना हिस्सा चढ़ सकता है, ठीक है। हुण सैकेंड पार्ट विच की बोलिया गया, तो सैकेंड पार्ट आपां सॉल्व करते हैं। सैकेंड पार्ट विच बोलिया गया कहंदे अगर मान लो कि जिहड़ा रस्सी है वो 10 मीटर दी हो जाए 5 मीटर तो तां दसो उनका एरिया की आऊगा। मतलब हुण ये रस्सी जो कि 5 मीटर दी सी ये कितने मीटर दी होगी 10 मीटर दी होगी। इट मीनस घोड़ा मान लो इत्थे तक जा रहा तो हुण घोड़ा कितना चढ़ लूगा, इन्ना हिस्सा चढ़ लूगा। इट मीनस
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सैकेंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, क्योंकि रस्सी ਹੁਣ 5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगेन ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੇਜ਼ਡ ਬਾय हॉर्स, तो वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन एंगल तो 90 डिग्री है और थले 360 डिग्री ही लिखांगे। पाई की वैल्यू ने बोली है 3.14 यूज करो, तो जो अपने को रेडियस है हुण 5 की जगह एक्चुअली की है 10 है, ठीक है। तो अगर मैनू एरिया ऑफ सैक्टर कढ़ना सीगा, हुण रेडियस कितना है 5 की जगह 10 है, तो हुण वो घोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहा है खाण वास्ते। तो इनू आपां जदों सॉल्व करांगे, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। सो 100 4s are 25, इथों डेसिमल गया जीरोज नाल, ये जीरोज भी गई, तो आ गया 25 इंटू 314। इनू जो आप मल्टीप्लाई करांगे साइड पर करके देख लेने, 314 नू 25 दे नाल, 5 4s are 20, 7 15 8 2 ते 6, तो ये आ गया 0 15 7 और 8 7, तो ये आ गया 7850। बट क्वेश्चन विच बोलिया गया है कितना इनक्रीज आया, तो सब तो पहला इन्ना एरिया कवर कर रहा सीगा, जेड़ा इनक्रीज आया एक्चुअली की है सिर्फ इन्ना ही इनक्रीज आया। ए इनक्रीज किद्दां कड्डोगे, पूरे वड्डे वाले एरिया विचों छोटे वाला एरिया माइनस करके। तो आप कड्डना चाहते हैं इनक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, वो क्या होगा, पुराने वाले एरिया दे विचों नवे वाला एरिया माइनस करते हैं, पुराने वाला एरिया सॉरी नवे वाले एरिया चो पुराने वाला एरिया माइनस करते हैं। तो नवे वाला एरिया हुणे आपां कड्ढिया 7850 है, और जदों रेडियस 5 सीगा उदों एरिया अपने कोल सी 19.625 आपां हुणे ही कड्ढिया सीगा। इन्हां दोनां नूं जस्ट माइनस करांगे, जे तुसीं इहनूं माइनस करोगे आ जाऊगा 58.875 मीटर स्क्वायर। मतलब इन्ना एरिया हुणों फालतू ग्रेस कर पाएगा जे तुहाडी रस्सी 5 मीटर तो 10 मीटर लंबी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन विच बोला गया सी सब तो पहला फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो इहदा मतलब घोड़ा कितना ग्रेज कर पा रहा है। तो एक्चुअली जो एक सर्कल का सैक्टर बन रहा सीगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर सीगा मतलब इत्थे एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सी। रेडियस असी 5 लैके सॉल्व किया सी, साडे कोल फस्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया सी 19.625 मीटर स्क्वायर। फिर उस तो बाद कहते कि मान लो कि रस्सी हुण 5 मीटर तो 10 मीटर लंबी हो गई है, तो दसो कितना इनक्रीज हुण वो ग्रेजिंग का एरिया हो गया उहदे लई। तो सपोज पहला 5 इन्नी सी, 10 इत्थे आ जाएगी किते, हुण वो इन्ना हिस्सा ग्रेज कर पा रहा, इट मीनस आ भी एक सैक्टर ही बन रहा। तो पहला मैं उनका एरिया कढ़िया, अगेन फॉर्मूला लगा के थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हुण मैं यूज़ करूँगा 5 की जगह 10, क्योंकि उन्हें बोलिया कि हुण रस्सी कितनी लंबी हो गई है 10 मीटर जितनी लंबी। सॉल्व किया सी मेरे को आ गया सी 7850 मीटर स्क्वायर एरिया का। बट सानू पूछा उन्हें इनक्रीज एरिया, तो देखो पहला एरिया इन्ना खा रहा सीगा, हुण एरिया इन्ना खा पा रहा, तो कितना इनक्रीज आएगा आ वाला हिस्सा। ये किद्दां कड्डोगे, ਵੱਡੇ वाले एरिया विचों छोटे वाला एरिया माइनस करके, ਵੱਡੇ वाला एरिया आपां कड्ढिया हुणे ही 7850, ਉਹਦੇ चो छोटे वाला मतलब जिहड़ा 5 मीटर वास्ते एरिया ऑफ ग्रेजिंग सीगा वो माइनस करके साडे कोल आंसर आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। सो इस तरीके नाल तुसीं देखिया कि क्वेश्चन विच कई बार तो तुहानूं डायरैक्ट बोलदे आ फाइंड द एरिया ऑफ सैक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ सैगमेंट, तो कई बार तुहानूं इनडायरैक्ट वे दे नाल एक प्रॉब्लम सम दे विच भी पूछ सकते हैं। तुहानूं उत्थे समझना पऊगा कि उत्थे एरिया ऑफ सैक्टर कड्ढण वास्ते बोलिया कि कुछ होर। तो इस तरीके नाल मैं क्वेश्चन ट्राई किया। सो स्टूडेंट आपां नैक्सट एक प्रॉब्लम सम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector shown in figure. Find, सब तो पहला पार्ट है total length of the silver wire required and second है area of each sector of the brooch. तो कहते हैं ब्रोच इस तरीके ना बनया, जिन्नी भी लाइनां तुहानूं दिख रही हैं इहदे विच आ वाली ये सारी सिल्वर वायर दे नाल ही बनी हुई है, अंदरों भी सिल्वर वायर है
और ये वायर जिहड़ी है एक्चुअली 5 डायमीटर ने अंदरों दी, 1 2 3 4 एंड 5 डायमीटर ने, जो कि एक्चुअली इनू किन्ने इक्वल हिस्से बन रहे 10, देखने नहीं शायद तुहानूं 10 नहीं लग रहे इक्वल हिस्से, बट हैगे इक्वल ने। आपां नूं कंडीशन ही दिता गया, मेरे बनाने विच थोड़ी जी वो हैगी है, बट उन्हें बोलिया कि सारे सैक्टर का एरिया की है इक्वल है, ठीक है। तो उन्हें बोलिया कि है कि हर एक वायर का डायमीटर कितना है 35 mm है। तो बोल रहे कितनी वायर रिक्वायर्ड है। देखो वायर रिक्वायर्ड का मतलब वायर कित्थे कित्थे लगी हुई है, एक तो इत्थे लगी हुई है, मतलब बाउंड्री तो लगी हुई है, बाउंड्री का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ते लगी हुई है, प्लस वायर कित्थे लगी हुई है, एक इत्थे, दूसरी इत्थे, तीसरी इत्थे, चौथी इत्थे और पंजवीं इत्थे। तो इट मीनस जो मैंने टोटल वायर देखनी है तो एक्चुअली वायर बाउंड्री ते है, इट मीनस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखना पऊगा, प्लस ये 5 डायमीटर के उत्ते जिहड़ी वायर लगी होगी वो भी सारियां नूं ऐड करना पऊगा। तो मैनूं पता लग जूगा टोटल वायर कितनी लगी है सिल्वर दी, जो कि फर्स्ट पार्ट विच पूछा गया। तो आप फर्स्ट पार्ट करते हैं, सानू बोलिया है टोटल वायर नीडेड। तो एक्चुअली हुणे आपां देखिया वो एक्चुअली की है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स ऑफ सर्कल, ठीक है। कि जिहड़ी वायर है वो कित्थे कित्थे लगी हुई है, डायमीटर्स ते लगी हुई है ते नाल सरकमफ्रेंस से लगी हुई है। तो सानू टोटल वायर पता लग जूगी कि कितनी लगी हुई है, कितनी लेंथ लगी हुई है टोटल वायर दी। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की हुंदा है 2πr हुंदा है ते 5 डायमीटर्स ने ते नाल लिख दिता 5 डायमीटर, ठीक है। सानू बोलिया गया कि जेड़ा डायमीटर वायर सर्कल का डायमीटर हो की है 35 mm है, तो इन्हां दा रेडियस कितना होगा, क्योंकि सानू पता है डायमीटर कितना है 35 mm है, तो रेडियस जेड़ा हुंदा है वो की हुंदा है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 हुंदा है, इट मीनस वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 mm। सो इत्थे मैं जेड़ा रेडियस है वो कितना यूज करूंगा, अच्छा पाई की वैल्यू ने कुछ नहीं बोली यूज देने वास्ते, तो आप अपने वालों लिख सकते हैं 22/7, क्योंकि मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी जे पाई की वैल्यू दित्ती हुई है यूज करनी है वही, जो तुहानूं नहीं दित्ती तो तुसीं सिंपली यूज कर सकते हो 22/7। रेडियस सानूं दित्ता है 35/2, हुणे आपां देखिया, ते नाल सानूं 5 डायमीटर भी ऐड करने ने, और हर एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35। तो ये सारी लेंथ किंदे च आ जूगी, mm दे विच आ जूगी। मतलब इनू सब पूरी इक्वेशन इस प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे को की निकल आऊगी लेंथ ऑफ वायर, बट वो वायर किन्ने यूनिट्स से आन गया, mm यूनिट्स से आन गया, ठीक है। सो क्वेश्चन इच बोलिया सी टोटल वायर नीडेड, आपां कीता सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर, क्योंकि वायर एक तो बाउंड्री ऑफ सर्कल ते लगी है प्लस अंदर भी लगी हुई है, तो आपां इस तरीके दे नाल कढ रहे हैं लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। सो आपां इनू सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है, तो 2 1 जा ए भी 1 जा, तो आ गया 22 × 5 प्लस 5 × 35। तो इनू सॉल्व करते हैं, 22 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आ जाएगा 110, एन लिख देता 110 प्लस 35 ਨੂੰ भी 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 175। तो जे तुसी इन्हां दोनों ਨੂੰ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 285 mm। तो इहदा मतलब जिहड़ी वायर यूज हुई है इस ब्रॉच ਨੂੰ बनाने वास्ते वो किन्ने लंबी हैगी है 245 mm लंबी वायर है। हुण सैकेंड पार्ट इच की बोलिया सानू एरिया ऑफ ईच सैक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो एरिया ऑफ ईच सैक्टर करना है, आपां उहनूं करदे हां किद्दां करांगे, देखो एरिया ऑफ ईच सैक्टर मतलब मैनू आ सैक्टर का एरिया करना है, ठीक है। सानू पता एरिया सैक्टर क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। रेडियस तो सानू पता है कितना है 35/2, कि सानू एंगल पता है नहीं पता, बट सानू पता है पूरा सर्कल जिहड़ा है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। पूरा सर्कल तो 360 डिग्री बना रहा है, बट ये सर्कल किन्ने इक्वल हिस्से वंडिया जा रहा है 10 हिस्सों। इहदा मतलब जे मैनू 10 हिस्सों दे विच डिवाइड कर रहा है तो हर एक दा एंगल कितना आ जाऊगा 36 डिग्री। मतलब आ भी एंगल 36 होगा, आ भी 36 होगा, आ भी 36, ए भी 36, ए भी 36, ए भी 36, आ भी 36, आ भी 36, आ भी 36, आ भी 36। तो सारे 36 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ऐड करोगे फिर दोबारा की बन जाएगा 360 डिग्री। तो इहदा मतलब मैनू पता लग गया एंगल फॉर ईच सैक्टर कितना है जिन्ना भी एंगल सी 360 डिग्री सी पूरे सर्कल का, किन्ने हिस्से च वंडिया गया सी 10, तो कितना आ गया 36 डिग्री।
तो ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 36 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੇ 36 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 360 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। तो थीटा हुणे आपां कड्ढिया कितना? 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री लिखिया। पाई की वैल्यू नहीं दी, आपां अपने वालों यूज़ करांगे 22/7 और रेडियस हुणे आपां देखिया सीगा 35/2 आंदा है। ठीक है, सो आपां इनकी कटिंग कर देने। 36 1s 36 10s 10 1 2 के टेबल ते 11s 5 दा, तो यह आ गया 11 अपॉन 7 इंटू 1/5 इंटू 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, तो 7 1s 7 5s ये 5 नाल भी 5 गया, तो साढ़े कोल क्या आ गया? 35 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4। तो 35 नू 11 नाल मल्टीप्लाई करके लिख देने 5 3 3 5। तो यह आ गया 565 डिवाइडेड बाय, एक बार चेक कर लेने 35 5 3 5 3, तो यह आ गया 385। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आ गया 385 डिवाइडेड बाय 4 नाल के आ जाएगा यूनिट mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ गया? 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। अगों इन्हों अगे भी सिंपलीफाई करना चाहते हो तुसीं कर सकते हो, इत्थे भी आंसर छड्डोगे तां भी सही मन्निया जाऊगा। तो देखो क्वेश्चन विच बोलिया कि क्या सीगा? सानू लेंथ ऑफ वायर कढनी है, वो भी आपां कढ लित्ती, ते नाल सानू बोलिया सी एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर लई पहले मैनूं एंगल नहीं पता सीगा, असीं एंगल कढ लिता कि पूरा सर्कल 360 डिग्री बना रहा है, तो 10 इक्वल हिस्से जाऊगा तो 36 डिग्री का एंगल बनूगा। रेडियस सानू पता ही सीगा कि 35/2 है। सिंपल फॉर्मूले च आपां वैल्यूज पुट कीतियां, सॉल्व किया, साडे कोल आंसर आ गया 385/4 mm स्क्वायर। सो स्टूडेंट आपां देखिया कि कई बार सानू डायरैक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट या फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या माइनर सेगमेंट, जो भी पूछणगे आपां डायरैक्ट फॉर्मूला लगाते सीगे। बट कुछ प्रॉब्लम्स हम भी आपां हुणे करके देखे है जो कि इनडायरैक्ट वे दे नाल उह चीज़ां नूं पुछ रहे ने। तो तुसीं क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझ के उहदे विचों समझ ने तुहानूं बोलिया कि गया कड्ढण वास्ते। जिवें कि आपां ब्रॉच वाला क्वेश्चन देखिया, इत्थे सानूं इनडायरैक्ट वे दे नाल पुछया गया सीगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कट के नाल सारे डायमीटर ऐड करो। तो सानू पता होना चाहिए हर एक चीज़ का सरकमफ्रेंस की होंदा है, एरिया ऑफ सैक्टर का मतलब की है और सरकमफ्रेंस ऑफ सैक्टर का मतलब की है। तो जे तुहानू सारिया चीज़ों का मतलब पता है तो तुहानू पता है उहदे लई किहड़ी-किहड़ी चीज़ों की जरूरत है, तो तुसीं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिवें कि अगर मैनूं इत्थे बोलिया गया सी एरिया ऑफ सैक्टर कड्ढण वास्ते, तो मैनूं पता किहड़ी-किहड़ी चीज़ों की जरूरत होंदी है? रेडियस की ते एंगल की। रेडियस तो मैनूं पता सी बट एंगल नहीं पता, तो एंगल आपां कड्ढिया। तो इदां ही तुहानूं कुछ क्वेश्चन होर भी मिलणगे जिंदे विच तुहानूं कुछ चीज़ां तो दित्तियां होणगीਆਂ, कुछ नहीं दित्तियां होणगीਆਂ, और इनडायरैक्ट वे दे नाल तुहानूं एरिया ऑफ सैक्टर या सरकमफ्रेंस ऑफ सैक्टर कुछ इदां दी चीज़ां नूं पुछया जाएगा। तो फॉर्मूले जिहड़े ने तुसीं अपने कोल साइड ते लिखने ने, एक या दो बारी तुसीं इहनूं लिखोगे तुहानूं अपने आप ही याद हो जाणगे। तो जिहड़ी पाई की वैल्यू है जे तां गिवन है सानूं आपां ओही यूज़ करांगे, अदरवाइज 22/7 यूज़ करांगे। सो अज लई आपां इन्ने क्वेश्चनस करदे आ, कल आपां होर क्वेश्चन ट्राई करांगे। सो धन्नवाद।